बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिस्कशन थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री और ऑब्वियसली जो है इसमें हमने मटेरियल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी है और ये हमारा इसमें लॉज भी हम देखेंगे और उसके साथ साथ इसमें जो बाकी हमारी वेरिएशंस हैं थर्मोकेमिस्ट्री से जो कैलकुलेशंस हैं वो भी सारी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन्स हैं या हीट का कंसेप्ट है या स्टेट्स का कंसेप्ट है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से थर्मोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमारा बेसिकली इसकी दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और which deals with heat change which involves during chemical or physical changes. So that is called thermochemistry. Actually, thermochemistry is totally related with heat of the system. Uh, it might be the chemical reaction of the different components, or it might be the simple physical change. Actually, according to law of conservation of energies, energy can either be produced but not be destroyed, but can be converted from one form to another form. So, on the basis of this parameter, on the basis of law of conservation of energy, thermochemistry can be studied. जो मैक्सिमम हमारी आज की डिस्कशन है एक्सोथर्मल रिएक्शंस एज वेल एंडोथर्मल प्रोसेस, तो इसको आगे हमने डिटेल में भी लेके जाना है और मतलब हम एंथैल्पीज को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एंथैल्पीज हैं वो क्या हो सकती हैं, कैलकुलेशंस पे भी हम आ रहे हैं। Exothermic in which heat is released and an endothermic in which heat is absorbed. In the case of exothermic process, overall the energy of the reactants is higher than that of the products. But in case of endothermic, the energy of the products will be higher as compared to the reactants. So, in exothermic reactions, the energy of reactants is higher, so products should be more stable because energy is inversely proportional to stability. Energy of the reactants is higher, but the stability of the reactants will be less than the stability of the products. In endothermic process, energy is absorbed, and the energy of the products should be at a higher level as compared to energy of the reactants. So, reactants should be more stable as compared to the products. तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इवन हम एनर्जी को भी यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि हमारे कहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स ज़्यादा स्टेबल हैं और कहाँ पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये आज की हमारी डिस्कशन होगी और इसमें एक्सो और एंडोथर्मिक में हमारे पे सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट आ जाता है और सिस्टम और सराउंडिंग के बाद फिर जो है वो हम सिर्फ जो है बाउंड्री की भी बात करते हैं। Actually, जो सिस्टम है, system is the main part of the universe which is under observation, under attention, that should be called as a system. जैसे कि हम किसी बीकर में रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होते हैं, the material which are existing in the beaker, that is called system, and in flask as proceeding in reaction in flask, so the material in flask should be the system. Surrounding everything of the universe other than system is called surrounding, as we are proceeding in reaction in a laboratory. So the other
apparatus, living organisms, buildings, plants, animals, that should be the surrounding of that for that system. But there is an imaginary line, imaginary parameter wall which separate the system from the surrounding. That is called boundary. जैसे फ्लास्क है, फ्लास्क की जो दीवार है, that is called boundary. और फ्लास्क के अंदर जो मटेरियल हो रहा है, that is the system. और जो उसके बाहर है तो क्या आ जाएगा वहाँ पे सराउंडिंग आ जाएगी. अच्छा, समटाइम एमसीक्यू इस तरह से आ जाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है. सपोज एक एग्जांपल कोट की कर दी जाती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 molar is reacting with 1 molar HCl in a flask. ठीक है. What is the system? इनमें सिस्टम कौन सा है, मतलब NaOH और HCl का हम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं फ्लास्क में, तो बताएं इसमें सिस्टम कौन सा है. अब एक ऑप्शन ये आ जाता है कि फ्लास्क एज अ सिस्टम. ठीक है, फ्लास्क उसमें कंपोजिशन का सेम है, उसका मतलब ये है फ्लास्क विद मटेरियल, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. या फिर जस्ट मटेरियल्स इनसाइड द फ्लास्क, दैट इज सिस्टम. इन दोनों में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है कि मटेरियल इन फ्लास्क और मटेरियल विद फ्लास्क. तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो मटेरियल इन फ्लास्क हमारा राइट ऑप्शन बनेगा. मटेरियल विद फ्लास्क हमारा राइट ऑप्शन नहीं बनेगा. ठीक है, ये सिस्टम की तरफ हम जब जाएंगे, क्योंकि जो हमारी फ्लास्क है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज बाउंड्री. हाँ, उसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द सिस्टम. ठीक है, और सराउंडिंग बार हमारे जगह. अब एक्सोथर्मिक में जब हम बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक में हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. और एंडोथर्मिक में हम जब बात करते हैं तो हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. ठीक है, ये सारी वेरिएशंस में आती हैं कि हमारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में वेरिएशंस ऑफ द एनर्जी. जैसे कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात की हुई है. हीट फ्लोज इन अ गिवन फ्रॉम पॉइंट ऑफ द व्यू of the system. The process absorb heat from the surrounding, that is called endothermic. Process loses heat to the surrounding, that should be called as exothermic. ठीक है. अब जैसे कि मैं एक और यहाँ पे पॉइंट भी क्लियर करता जाऊँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के केस में, जो अमूमन हमारा कंसेप्ट जो है वो इसमें गलत होता है. जैसे कि आपके सामने ये एक बीकर है और इस बीकर में हम रिएक्टेंट्स ऐड कर रहे हैं और ये वाटर है. वाटर में हम येलो कलर के ये जो कंपोनेंट्स है, जो मटेरियल है, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है. अब ये हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी पॉसिबल है और एंडोथर्मिक भी पॉसिबल है. अब सपोज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीड होगा जब हमने इसमें मटेरियल डाला, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्रोसीड होगा. ठीक है, तो ओवरऑल हीट जो है उसमें क्या होना, रिलीज होना है. हीट यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है देन हीट शुड बी अब्सॉर्ब. एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये है कि हमारा ये जो बीकर है ये कूल कब होगा और हीट अप कब होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. ठीक है, ये अमूमन हम मिक्स करते हैं. हमारा कंसेप्ट क्या होता है, वो ये होता है कि व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ये हमारा बीकर है, इस बीकर में हम हीट इज एब्सॉर्ब मींस के एंडोथर्मिक. तो हम ये कहते हैं, हम ये समझ बैठते हैं कि ये जो हमारा बीकर है ये गर्म हो जाएगा, ये बीकर हमारा गर्म हो जाएगा. ये गलत है. जब हीट एब्सॉर्ब होगी ये बीकर गर्म नहीं होगा बल्कि ये ठंडा हो जाएगा. ठीक है. और जब हीट रिलीज होगी उस वक्त ये जो बीकर है जिसमें आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ये हीट जब रिलीज होगी तो ये गर्म हो जाएगा. ठीक है. अब अमूमन हम कंसेप्ट ये समझते हैं, हम कहते हैं कि हमारा बीकर है, दैट इज अ सिस्टम, एंड एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज. उसने हीट बाहर सिस्टम सराउंडिंग में रिलीज कर दी और ये खुद ठंडा हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता. हमारे इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो एनर्जी हीट एब्सॉर्ब या रिलीज कर रहे होते हैं. अब वो कहाँ पे रिलीज करेंगे, अपने मीडियम में रिलीज करेंगे, और ये जो उसका मीडियम है वो हमारा बीकर है. अगर ये जो बीकर है दैट इज एक्टिंग एज अ मीडियम, हीट रिलीज भी इसी में होगी, एब्सॉर्ब भी यहीं से होगी. अगर इसी में हीट रिलीज हो गई इट विल हीट अप, और अगर एब्सॉर्ब होगी इट शुड बी कूल्ड. ठीक है. इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारा बीकर हीट अप होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमारा जो बीकर है
तो कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल कंसेप्ट हमारा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केसेस। फर्दर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, अ, जैसा कि हमारे ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ये तीन तरह के हमारे सिस्टम है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो ओपन सिस्टम है, इसमें matter and heat both can be exchanged from system to surrounding. In closed system, only heat can be exchanged, not matter. But in isolated system, neither heat nor matter can be exchanged from system to surrounding or surrounding to system. ठीक है, ये हमारी जो है वो तीन तरह के हमारे ये सिस्टम्स आ जाते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। अगर आपके पास एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी इज अ सिस्टम। जब आप उसे ओपन रख देंगे, कप ऑफ टी गर्म है, आपने उसे ओपन रख दिया, तो उस ओपन फॉर्म में वो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करेगा और मैटर के साथ साथ हीट भी एक्सचेंज करेगा। हीट तो एक्सचेंज करेगा, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, और मैटर इस तरह से एक्सचेंज करेगा कि इसमें से वेपर जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, या बाहर से कोई चीज उसके अंदर जा रही होती है। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। दूसरा ये है कि क्लोज सिस्टम से क्या मुराद है, क्लोज सिस्टम हमें कैसे समझ आएगा। अगर हमारे पास कप ऑफ टी है, दैट इज अ सिस्टम, लेकिन हम उसको ढांप के रख देते हैं, उसको कवर करके रख देते हैं। अब जब हम उसे ऊपर से कवर कर देंगे, वो थोड़ी देर में ठंडा तो हो जाएगा, इट मीन्स कि उसने एक्सचेंज अपनी कर दी हीट, लेकिन उसका मैटर नहीं निकलेगा, क्योंकि क्लोज आपने कर दिया, मैटर इज नॉट एक्सचेंज। दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर यही हमारे पास सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने, ये हमारी जो टी है उसको हमने एक थर्मोफ्लास्क में रख दिया, जैसे हम थर्मास कह रहे हैं, थर्मोफ्लास्क में, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो वहां पे ना हीट एक्सचेंज होगी, ना ही वहां पे मैटर एक्सचेंज होगा। ठीक है, दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं होंगी। इसलिए हम सिस्टम को ओवरऑल थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओपन, क्लोज्ड एज वेल आइसोलेटेड। फर्दर अगर हम देखें इसमें ओवरऑल हमारे जो इक्विलिब्रियम आते हैं, और उसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो स्पेशली जो हमारे रिवर्सिबिलिटी है और हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जब कंप्लीट हो जाता है उस वक्त ओवरऑल उसमें एनर्जी चेंज नहीं हो रही होती। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हम मुख्तलिफ टर्म्स यूज करते हैं। एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। इनमें अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? एक्चुअली एक स्टेट हम यूज करते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, अब ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, इट इज नॉट वेरी स्टेबल स्टेट, इट्स नॉट लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, जो लो एनर्जी स्टेट होगी दैट शुड बी स्टेबल, और जो हाई एनर्जी स्टेट होगी दैट शुड नॉट बी द स्टेबल स्टेट। आप ओवरऑल जब भी हम सिस्टम को लो एनर्जी पे ले जाएंगे, स्टेबिलिटी होगी, लेकिन जब मेटास्टेबल पे जाएगा तो उस वक्त इतनी लो एनर्जी की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो मजीद प्रोसेस से जाएगा अनस्टेबिलिटी से, फिर मेटास्टेबल स्टेट से वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब इसमें वो बाज़ जगह पे मेटास्टेबल स्टेट की जो बात की जाती है, जैसे प्लाज्मा की हम बात करते हैं, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर बट इट्स नॉट स्टेबल। जैसे सन की रेडिएशन है, वो अर्थ पे आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। तो अगर हम उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, तो उस प्लाज्मा की फॉर्म में जो है, तो उससे एनर्जी क्राइसिस जो है वो दूर किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो मटेरियल है, ये जो प्लाज्मा है, इसकी हाई एनर्जी तो है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज हाई एनर्जी मटेरियल, लेकिन हम उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे होते। हाँ, अगर हम उसको मेटास्टेबल फॉर्म में, नॉट हाईली स्टेबल बट इन मेटास्टेबल स्टेट में अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेबिलिटी कंसेप्ट चलते हैं। एनर्जी है द फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी हैज नो मास एंड और वॉल्यूम, कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी हम कहते हैं। और उसके साथ साथ जो है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी,
केमिकल्स की है या इसके अलावा एटम्स की है। अच्छा, इसमें जो एनर्जी की हम बात करते हैं, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी है और उसके साथ साथ हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की फिर टाइप्स हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल। पोटेंशियल एनर्जी में फिर फोर्सेस की बात आ जाती है, स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, वो सारे पोटेंशियल में हम डिस्कस करते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ट्रांसलेशनल मीन्स के शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। अगर मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें ट्रांसलेशन एनर्जी कह रहे हैं, और ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ये कैपेसिटी है कि ट्रांसलेशन एनर्जी उसमें पाई जाती है। जब हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल पे जाते हैं, जैसे H2 है, Cl2 है, उनकी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या उसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी तो है ही, बट दैट शुड बी वाइब्रेशनल एनर्जी। कि जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बॉन्ड आ जाएगा और बॉन्ड फिर वाइब्रेट भी करता है, जो कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं। ये जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहाँ पे भी हम इसे देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारा जो है बॉन्ड है उसकी जो रोटेशन है या उसकी जो वाइब्रेशनल, बल्कि वाइब्रेशनल है वो हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें ट्रांसलेशनल भी होगी एज वेल वाइब्रेशनल भी होगी। हाँ, जब हम ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं या हायर की तरफ जाते हैं, उसमें जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो ट्रांसलेशनल भी हैं, वाइब्रेशनल भी है और रोटेशनल भी है। ठीक है, बॉन्ड एंगल आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा तो उसकी रोटेशनल की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टाइप की हमारी एनर्जीज होती हैं जो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगे। जी, हीट क्या है? हीट क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हाई से flow from higher concentration to lower concentration, or from warmer object to cooler object। ठीक है, ये इसकी शिफ्ट है, दैट इज टर्म्ड एज हीट। फर्दर ये है कि हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी, इट माइट बी डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, अब यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज है। एक, W वर्क पॉजिटिव हो सकता है, एक वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, और एक जो हीट जो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। अब डेल्टा ई इन दोनों का सम है। ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखें, क्यू को हम पॉजिटिव साइन से कब डिनोट करेंगे? जैसे कि ऊपर मेंशन किया हुआ है, व्हेन हीट इज absorbed, that should be an endothermic process. As heat is absorbed, Q should be represented by with Q positive, with positive sign. When heat is released, then it should be exothermic process, and the sign of Q should be denoted by negative sign. So heat is transferred out, heat is transferred in, and heat is transferred out। ठीक है, ये ओवरऑल हमारी हीट की बात आ जाएगी, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव। दूसरा है कि W, हमारा वर्क कब हम कंसीडर करते हैं? वर्क शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको भी हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। इफ वर्क डन on the system, that should be positive, her work done by the system is negative। ठीक है, जब सिस्टम काम कर रहा होगा सराउंडिंग पे, सिस्टम जब काम कर रहा होगा दैट वर्क शुड बी नेगेटिव, और जब सिस्टम पे काम हो रहा है दैट शुड बी पॉजिटिव। अब फिजिक्स ये कहती है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, केमिस्ट्री ये कहती है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। फिजिक्स नेगेटिव कह रही है, केमिस्ट्री यहाँ पे पॉजिटिव कह रही है। और दूसरी बात यह है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, केमिस्ट्री नेगेटिव कहती है, और वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स क्या कहती है? पॉजिटिव कहती है। अब इसमें क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली फिजिक्स भी ठीक है और केमिस्ट्री भी ठीक है, लेकिन दोनों के जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। दोनों के जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। एक्चुअली फिजिक्स इज बेस्ड अपॉन मैकेनिकल वर्क, and according to physics, if car is a system and car is working,
If engine is a system and engine is working, it means that work should be positive. Engine is giving some output in mechanical mode, in the form of mechanical mode. So that should be positive. But according to physics, if system is not working and we are just fueling, we are just providing, we are just working on the system and there is no output, just there is input of the system, so it should be mentioned as negative volt. But in chemistry, our parameter is different. Our parameter is internal energy, delta EH, that is in internal energy. Internal energy is the sum of all type of kinetic and potential energies. ठीक है, मतलब all type of energies आ जाएंगी इसमें, तकरीबन all type of energy. Obviously हमारी कुछ energies ऐसी हैं जो भी सिस्टम में वो पोटेंशियल हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि kinetic हैं. तो ओवरऑल जब हम उसका सम अप लेंगे दैट शुड बी इंटरनल एनर्जी. अब केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है कि डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो रहा है, दैट वर्क इज पॉजिटिव. और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, देन सिस्टम वर्क कर रहा है, दैट सिस्टम इज दैट वर्क इज नेगेटिव. ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे कंसेप्ट इंटरनल एनर्जी का है केमिस्ट्री में. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा. और ऑब्वियसली तब बढ़ेगी व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, और तब कम होगी व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, तो इस पैरामीटर पे हमारा ये क्यू भी हो सकता है और ये हमारा हो सकता है. अब डेल्टा ई को ओवरऑल हम कंसीडर करें क्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव, दैट्स आल्सो पॉसिबल. If heat is supplied to the system and work is done on the system, then Q should be positive as well. W is positive. When heat is released and work done by the system, then both the values should be negative. And when the process is endothermic and work done by the system, then Q is positive and W is negative. And the vice versa, when in exothermic process and work is done on the system, so it should be W positive and Q should be the negative value. ठीक है, तो इस एंगल से इसको जो है फिजिकल वर्क एक बार रिपीट कर दें प्लीज. फिजिकल वर्क मीन फिजिक्स. Yes, according to physics, actually physics is based upon a mechanical work. Physics is based upon mechanical work because physics is based on mechanics. और according to mechanics जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि अगर एक इंजन है, इंजन इज अ सिस्टम एंड इट इज वर्किंग, it's producing some mechanics, it's working, it's developing some output, then that work is positive. If physics can be. But if system is not working, we are just working on the system and we are working just on the system, that should be counted as a negative work by the physics. But in chemistry, our parameter is internal energy, not mechanical work. क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दैट शुड बी पॉजिटिव. इंटरनल एनर्जी निकलेगी, कम होगी, दैट शुड बी नेगेटिव. तो इसीलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव भी कर सकते हैं, डब्ल्यू नेगेटिव. मतलब हमारे क्यू और डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि हमारी ओवरऑल जो है इस वक्त जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है. तो समटाइम क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी थी. ठीक है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी, वो इंटरनल एनर्जी बता दी जाती है. और सम टाइम ऐसा भी होता है कि उसका वर्क भी बता दिया जाता है, व्हाट शुड बी द हीट चेंज. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द हीट चेंज. ठीक है, हाँ उसमें स्टेटमेंट में जरा ख्याल करना है कि वो एक्सो की बात किया जा रहा है या एंडो की बात किया जा रहा है. सेम सम टाइम हीट बता दी जाती है, इंटरनल एनर्जी बता दिया जाता है, वी हैव टू फाइंड द वर्क. और समटाइम ये दोनों चीजें बता दी जाती हैं. Heat is how many kilojoules of heat is absorbed and how many joules or kilojoules equal to what is done by the system or on the system. So according to the statement, we will put the value of Q and W in positive or in negative sign. So we can find also change in internal energy works according to the situation, according to the equation. ठीक है, तो वो हम स्टेटमेंट बताते हैं कि हम Q को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है. ठीक, सपोज वो कहता है कि we have a system X and 10 kilojoules work is done and the heat is released. What should be the change in internal energy? अब उस पे वर्क हुआ, that is positive.
उससे एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज नेगेटिव। सो ओवरऑल सम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इस तरह की हमारी वेरिएशंस भी आ सकते हैं, हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे वो आ सकती हैं। तो ये इस तरह से हम डेल्टा ई को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्दर ये है कि यूनिट्स ऑफ हीट क्या है। Units of heat, calories can be used, joules can be used. A joule is as a unit of heat and energy as well. Calorie or dietary calorie is equal to 1000 calories. और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ joules we can also find pint and kilojoule. 1 calorie is equal to 4.14 joules. तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जिसमें इनकी जो यूनिट्स हैं उसको मेजर किया जा रहा होता है। फिर एनर्जी कन्वर्जन भी आ जाते हैं कि जैसे जॉल्स और कैलोरीज का कंसेप्ट दिया हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जॉल्स। तो ये 445 कैलोरीज टू जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जॉल्स आ जाएगा। ठीक है, 1857 तो 4.18 से मल्टीप्लाई